Welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In this video, I am going to talk about synthetic chromosomes or artificial chromosomes. Synthetic means artificially made chromosomes. As you know, chromosome is an integrated component of the nucleus of any higher organism or the circular chromosomes present outside the nucleus or freely in the organismal body in the lower organisms. Okay, that means in just every organism will be having chromosomes. The genetic material, which may be DNA or RNA, will be stored in chromosomes, and for the particular expression of that, chromosomes play very vital role. So let's see what is artificial chromosome, which refers to non-integrating vector that is transmissible and has the ability to harbor large amount of DNA. Non-integrating vector means, as you know, any vector, for example, if you say the E. coli as a vector will be having one plasmid and its normal genetic material or normal chromosome. Plasmid is an extra chromosomal genetic material. Okay, so here artificial chromosome refers to any non-integrating vector. Non-integrating means this organismal DNA or the chromosome or genetic material is not integrating into this particular plasmid, that is transmittable and has ability to harbor large amount of DNA. This plasmid should have ability to harbor large amount of DNA of our interest. Okay, for your better understanding, I am denoting it as P. P means plasmid and this is genetic material of that particular bacteria or virus or anything. In bacteria, the genetic material will be in circular form. In yeast, animals and plants, chromosomes will be in linear form. Okay, here I am talking about chromosome. First constructed in yeast and E. coli systems, that means first artificial chromosomes were designed in yeast and E. coli. If we talk about the traditional chromosome, the chromosome will be consisting of centromere, telomere and origin of replication. Let us talk about the need of artificial chromosome. As you know, when we go for the traditional genetic engineering process, the transformation process is the principle. For the transformation of any genetic material in the lower organisms, three principles are very important. That is transformation, transduction and conjugation. Transformation is the basic principle when we talk about the genetic engineering. Here what will happen? It often results in integration of foreign genes into the endogenous gene and disrupts its function. That means if that particular vector is causing any kind of disease or any disruption into the host organism, that will be an adverse effect when we are multiplying the DNA of our interest, or we are just placing the chromosome of our interest into the vector system. Transgene can be influenced by upstream or downstream regulatory elements around them. That is, they are subject to positional effect under these circumstances. Due to the upstream and downstream effects, positional effect will be there on a particular chromosome or for a gene which is located on that particular chromosome. Only a single gene or a few genes can be expressed. That means all the genes which we integrated with the plasmid of the vector may not be expressed. Then most importantly, gene stacking or pyramiding won't be successful in the traditional engineering system. That means if it will be successful also, it takes more generation in order to incorporate and confirm whether the gene of interest is integrated or not, or it is exactly present in the host or not. So for gene stacking,
difficult where transgene position affect insertion site complexity are found. First generation genetic engineering we will find these problems. Then in second generation genetic engineering, if we'll use the synthetic chromosome, that will help in delivering the large DNA sequence, complete metabolic pathways can be understood, and genetic changes will be large, that may be about 100 kb to many megabases we may integrate the changes. So let us see the requirements for synthetic plant chromosomes. So when I was talking about the conventional chromosome will be having different components or different parts like centromere, telomere, arms. Then inside the chromosome genetic material, DNA will be there, and on that particular arm genes will be there. Then inside the genes, alleles will be present on a particular location that is called as locus. All those things will be there, okay? And origin of replication will be there for everything. But when we talk about the synthetic chromosome, here you can see there will be centromere, telomere, sufficient chromatin and selectable marker transgene, because by using the selectable or scorable marker, very oftenly we use selectable marker, because by selectable marker we can classify the gene of our interest very easily and effectively. Next is centromere components in plants. Centromere, requisite component of artificial chromosome, which contains tandem repeated sequences of nearly 1 to 3 megabase size. In grass family, there will be 156 base pair of about repeat sequences. Misdivision of centromere, the core functional B chromosome is in the range of 300 kb or large in maize. As you know, B chromosomes are very popular in maize because B chromosomes are the extra nuclear or extra chromosomes, means they are just like A chromosome or normal chromosome, but their function is even not known, or their existence is known to be deleterious to the normal functioning of a particular plant, and these are found to be 300 kb or larger in size in maize. Then retrotransposons. In maize, the tandem array size of centromere repeats or cent-C is 700 kb to 2.7 MB, but the entire length is not necessarily associated with CEN-H3. That means when we डिज़ाइन एन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हमें एक कोई भी सीक्वेंस लेके उसमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. ओनली द अमाउंट ऑफ sequence required in order to bring a desirable change is only inserted, and that is cassetted in such a way that it should yield a desirable result. Epigenetic aspects of centromere specification. As you know, epigenetic changes क्या होता है? This is a change where we can observe only at phenotypic sequence or phenotypic level, but not at the genetic level. मतलब DNA level में कोई change हम observe नहीं कर सकते हैं. For constructing the artificial chromosome, yeast as a model is the old concept. Centromere specification in yeast is unusual among eukaryotes. मतलब सिर्फ yeast ही नहीं, आजकल बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं, या ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स पे आए हैं. देन ट्रंकेटेड मिनी क्रोमोसोम्स आए हैं. तो ये सब बहुत वेरियस कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे सिंथेटिक क्रोमोसोम्स बहुत ही पॉपुलर है. कमिंग टू टेलोमियर कंपोनेंट्स इन प्लांट्स. Specialized structure which cap the ends of eukaryotic chromosome. As you know, telomere का function क्या होता है? This brings and keeps the integrity to particular chromosomes. अगर क्रोमोसोम में टेलोमियर ब्रेक हो जाता है या टेलोमियर नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा? The chromosome will lose its structure and it may go and bind to other chromosome which will be not having that particular telomere size, and उस क्रोमोसोम को जीनोम से एलिमिनेट किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जब एजिंग फैक्टर आता है या ऑर्गेनिजम्स का एंड होने लगता है, दैट मीन्स व्हेन ऑर्गेनिजम्स रीच द सेनेसेंस फेज, इट इज़ नोन दैट टेलोमियर विल ग्रेजुअली डिसअपियर. जैसे ही टेलोमियरिक कंपोनेंट कम होते आता है तो ऑर्गेनिज्म सेनेसेंस फेज में जाने लगता है.
Telomere consists of highly conserved long array of short randomly repeated sequence. Example TTT A GGG in Arabidopsis thaliana and TTA GGG in Homo sapiens, TTA GG in insects. एवरेज लेंथ ऑफ टेलोमियर इज 3 to 40 kb ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे मैं टेलोमियर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टेलोमियर भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। और रिमेंबर, जो नॉर्मल रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन प्रोसेस होता है टेलोमियर का एंटायरली डिफरेंट होता है एज कंपेयरिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो फंक्शंस क्या होगा टेलोमियर का? इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड एंश्योर कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेक्टर्स। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। दिस इज़ ए प्लास्मिड इन विच ईस्ट जीन्स हैव बीन इंसर्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मुर्रे एंड सोस्टैक ने 1983 में फाइंड आउट किया था। इसका कैपेसिटी होता है 3000 kb। ये लार्जेस्ट कैपेसिटी वेक्टर होता है, लेकिन बैक्टीरिया में भी इससे ज़्यादा साइज़ का हम DNA और क्रोमोसोम को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट इसलिए पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर सीक्वेंस। तो एडवांटेज क्या है? इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस यूकैरियोटिक प्रोटीन्स दैट रिक्वायर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। डिसएडवांटेजेस है लेस स्टेबल देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड काइमरिज्म इसमें बहुत ही प्रॉब्लम है। सेकेंड इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एफ प्लास्मिड। एफ प्लास्मिड आपको कहाँ मिल जाएगा? कंजुगेशन प्रोसेस में, बैक्टीरियल कंजुगेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डिज़ाइन किया जाता है। हेयर रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लैग सिलेक्शन। कैपेसिटी इसका 350 kb होगा। यूटिलिटी क्या है? एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में बैक को यूज़ किया था। बीइंग यूटिलाइज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन मॉडलिंग जेनेटिक डिसीजेस। एग्जांपल अल्जीमर्स डिसीज, कैंसर। मतलब डिसीज़ कैसे एक्सप्रेस कर रहा है या उसका एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट बना के हाउ इट इज़ फंक्शनिंग एंड हाउ द एक्सप्रेशन इज टेकिंग आउट इन द ऑर्गेनिजम्स, दिस इज स्टडीड बाय यूजिंग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देन इन्फेक्शियस वायरल क्लोन का स्टडी करने के लिए भी ये यूज़ कर दिया जाता है, जैसे कि हर्पिस वायरस और पॉक्स वायरसेस। नेक्स्ट इज ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। This is synthetically produced vector DNA possessing the characteristics of human chromosome. इसका साइज होता है 1/10 to 1/5 of human chromosome, मतलब 6 to 10 MB इसका साइज होगा। Mitotically stable for up to 6 months. Advantages of human artificial chromosomes: can carry human genes that are too long, can be used for gene therapy and useful in expression studies as gene transfer vectors. तो अब देखते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को कैसे डेवलप करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही थी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको डेवलप करने का क्राइटेरिया बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन अब हम एक शॉर्ट तरीके से आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को कैसे बनाते हैं देखेंगे। 2 मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट, वन इज़ बॉटम अप अप्रोच एंड वन इज़ टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? दिस इज ए बिल्डिंग मेथड ऑफ बिल्डिंग क्रोमोसोम्स बाय डी नावो असेंबलिंग देयर कंपोनेंट पार्ट्स। मतलब इनसाइड ऑर्गेनिज्म में ही पार्ट्स का असेंबली किया जाता है। ये HAC मतलब ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को असेंबल करने के लिए बॉटम अप मेथड यूज़ किया जाता है। अपॉन डिलीवरी DNA is subjected to rearrangements resulting in artificial chromosomes larger than the original construct. Not yet used in plant due to high complexity and limited understanding about plant centromere organization. मतलब जैसे मैंने बताया था, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे लार्जर सीक्वेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। एंड वन मोर थिंग इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड ह्यूमन आर एंटायरली डिफरेंट, तो इसको प्लांट्स में यूज़ करना क्वाइट रिस्की है। तो सेकेंड अप्रोच है टॉप डाउन मेथड। ये बेस्ड ऑन क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेशन और ट्रंकेशन। ट्रंकेशन क्या होता है कि साइज को कम करना और बेस पेयर्स को कम कर देना। ये कैसे किया जाता है? मे बी इरेडिएशन और टेलोमियर मीडिएटेड ट्रंकेशन।
इरेडिएशन का एग्जाम्पल है अनस्टेबल मेज मिनी क्रोमोसोम कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10 हैज बीन रिकवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पोलन इरेडिएशन। तो ऑलमोस्ट इस मेथड को पॉपुलरली मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि आजकल जितने भी जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स है इस प्रिंसिपल को ही फॉलो करके चलता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अनस्टेबल है। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट अनस्टेबल, देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीनोम एडिटिंग मेथड्स, जैसे कि जिंक फिंगर मोटिफ यूज़ कर सकते हैं या क्रिस्पर कैस यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अगर हम क्रिस्पर कैस की बात करें तो वो स्टेबल इंटीग्रेशन होगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। वहाँ पे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम इजीली बना सकते हैं, जैसे कि आजकल क्रिस्पर सीक्वेंसेस मार्केट में अवेलेबल है, उसको टारगेट बना के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम मॉडिफिकेशंस को जनरली ला सकते हैं। देन टीलोमियर मीडिएटेड ट्रंकेशन, तो इसमें क्या होता है, इसका एम होगा टू विटल अवे द क्रोमोसोम आर्म्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीलोमियर रिपीट्स. It bypasses the complications of epigenetic aspects of telomere specification, works robustly in plants and can be used to produce engineered mini chromosomes with endogenous centromeres, construct gene of interest, site-specific recombination cassettes, telomere repeats. तो इसमें क्या होता है, टीलोमियर मीडिएटेड ट्रंकेशन में मिनी क्रोमोसोम को बनाने के लिए जनरली इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे टीलोमियर में मॉडिफिकेशन लाया जाएगा या उसका सीक्वेंस स्लाइटली कम करके बनाया जाएगा। देन बी क्रोमोसोम बेस्ड मिनी क्रोमोसोम्स, बी क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने बताया था, इनका फंक्शंस काफ़ी अननोन है, और जब नंबर बढ़ जाएगा बी क्रोमोसोम्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो डिलीटीरियस साबित हो जाएगा। इवन मैनी ऑर्गेनिजम्स डाई ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ बी क्रोमोसोम, क्योंकि ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जीनोम से एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेयरिंग पार्टनर. We can produce A and B chromosome based mini chromosomes by this method, but B chromosome based mini chromosome is interesting क्योंकि naturally occurring supernumerary chromosome, basically inert, small size, no phenotype, no developmental and transmission problem, easy detection of B chromosome derivatives, no report of recombination with A chromosome set, minimal detrimental effect on host genome. तो जैसे कि स्टेबल होते हैं तो इनका साइज़ भी कभी कभी सर्कुलर हो जाता है, तो ये क्या है, पासिंग मतलब जनरेशन टू जनरेशन में पास होने के लिए भी ये बहुत ही इजी तरीका होता है बी क्रोमोसोम्स का. दिस इज़ हाउ द मॉडिफिकेशंस बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम कैसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना सकते हैं वो मेथड दिया गया है. जैसे कि यहाँ पे माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड यूज़ किया है, जिससे पर्टिकुलर टीलोमियरिक पोजीशन में मॉडिफिकेशन लाया गया है, जैसे कि टीडीएनए और वेक्टर में प्लास्मिड का जो इंटीग्रेशन होता है वहाँ पे टीलोमियर रिपीटर एंड ट्रांसजीन का पोजीशन फिक्स करके एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके एट स्पेसिफिक साइट जब हम मॉडिफिकेशन लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि आपने फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट फिगर. ओके, तो ये दोनों को मिला के आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिजल्टेंट में ट्रांसफॉर्मेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. लेकिन जब हम एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाने जाते हैं और यहाँ पे हम इरेडिएशन या कोई और टेक्निक से डबल स्टैंड ब्रेक लाएंगे और उस जगह में हम अरे को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमें ट्रंकेटेड क्रोमोसोम मिलेगा या ट्रांसजीन इंसर्शन मिलेगा. ट्रंकेशन बाय इंसर्शन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड टीलोमियर, टीलोमियर का इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं या कोई भी डबल स्टैंड ब्रेक यूज़ करके हम एट स्पेसिफिक पोजीशन पे टीलोमियर फिक्स कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम ही हमको फिक्स करना है, मतलब जो डिफेक्टिव और जो हमें यूज़ नहीं है उस पार्ट को हम रिमूव करेंगे और उस जगह में टीलोमियर को इंजीनियर करके हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना सकते हैं. दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द सेकेंड पार्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये है ब्रीडिंग टेक्निक में कैसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को इंटीग्रेट किया जाता है. ओके,
तो मैं जूम आउट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसजीन प्लस टीलोमियर रिपीट अरे, तो हमने लास्ट स्लाइड में टीलोमियर जो इंटीग्रेट करके एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को ऑलरेडी रखा था। तो यहाँ पे देखिए एक टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 4n नंबर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे क्या है, टीलोमियर रिपीट अरे को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो मिनी क्रोमोसोम इसको बना के आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे मिनी क्रोमोसोम को इंटीग्रेट किया है जहाँ उसका इंजीनियरिंग किया गया था या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया था। ओके, तो उस कंस्ट्रक्ट को हम क्या करेंगे, या उस जीनोम 4n कंडीशन जो टेट्राप्लॉइड है उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिप्लॉइड इंडिविजुअल से क्रॉस करेंगे। तो फिर रिपीटेड बैक क्रॉस जब करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो नॉर्मल डिप्लॉइड इंडिविजुअल है उसमें ये मिनी क्रोमोसोम आ जाएगा। ओके, like that we will, by repeated back crossing, we will integrate the mini chromosome into the normal individual. तो I was talking about the genome editing techniques. अगर जिंक फिंगर न्यूक्लियस मोटिफ यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। मतलब जब भी हम जिंक फिंगर को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन है वो काफ़ी हद तक अनस्टेबल होता है। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली वो हुआ है कि नहीं। लेकिन आजकल जो मेथड्स है जैसे कि टेलन या क्रिस्पर कैस, इन मेथड से हम स्टेबल इंटीग्रेशन का काफ़ी हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So let us talk about the applications of artificial chromosome. Artificial chromosome construction system can be used as powerful mutagen. मतलब कोई भी न्यू वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर जीन स्टैकिंग इन प्लांट्स। जैसे कि आप जानते हैं जीन पिरामिडिंग एंड जीन स्टैकिंग दो अप्रोचेस है। जैसे कि पिरामिडिंग में एक ही ट्रेट के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट ब्लास्ट डिसीज़, तो ब्लास्ट के लिए 3-4 मैं जीन लूँगी, जैसे कि PI होगा, पिज होगा, ऐसे जीन्स में लूँगी, इंटीग्रेट करूँगी, तो वो होगा पिरामिडिंग। जीन स्टैकिंग क्या होता है कि स्टैकिंग में ये होता है कि वी इंटीग्रेट द कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स। जैसे कि हम जीन्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, फिर हम ब्लास्ट के लिए भी कर रहे हैं, फिर हम कोई पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, अगर वीट में हम बात करें तो रस्ट के लिए भी कर रहे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ हो गए जीन स्टैकिंग। ओके, तो इसके लिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ होता है विच इज़ करेंटली कंसिडर्ड एज चैलेंजिंग फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। Functional genomic studies could use mini chromosomes as a platform for adding specific genes or doses of chromosomal segments. It can be used in sequencing projects. Artificial chromosome platforms can provide solutions to the stable expression and maintenance of multiple transgenes in one genome structure and function. They can be useful for mass production of foreign proteins, pharmaceuticals और other metabolics in plants। मतलब बायोफार्मिंग में भी ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। Inheritance of multiple foreign genes as a unit represents a potential powerful research tools for understanding the chromosomes. नेक्स्ट जनरेशन वेक्टर फॉर ह्यूमन जीन थेरेपी एंड प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि आप जानते हैं आजकल कैंसर जैसे बहुत ही बड़े बड़े बीमारियां ह्यूमन जो कम्युनिटी को बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा रहा है, लेकिन इस तरह के चीज़ों को आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से एड्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन और रिट्रोफिटिंग द मिनी क्रोमोसोम्स विद एडिशनल फॉरेन जीन्स। Artificial chromosome could be easily introduced or removed from a genotype by genetic crosses and would facilitate integration of transgenes to different genetic backgrounds. मतलब ये नहीं है कि एक बार आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को डाल दिया तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई। इफ़ वी डोंट वांट वी कैन क्रॉस इट विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड वी कैन जस्ट एलिमिनेट इट फ्रॉम द सिस्टम। इट इज़ पॉसिबल दैट एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इन प्लांट्स विल बी कंबाइन देम विथ हैप्लॉइड ब्रीडिंग। हैप्लॉइड ब्रीडिंग क्या होता है, हम डिप्लॉइड कंडीशन में
क्रॉसिंग या कुछ बनाने जाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हैप्लॉइड कंडीशन में ब्रीडिंग करेंगे तो ये काफ़ी आसानी होगा एज वेल एज सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कंडीशन में ब्रीडिंग करने के साथ में अगर हम जोड़ेंगे तो काफ़ी सक्सेस पा लेंगे। लेट अस समराइज। तो अब तक हमने देखा कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कन्वेंशनल क्रोमोसोम से वो कैसे डिफरेंट है, कन्वेंशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग से आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाने में मतलब बनाने से क्या फ़ायदा है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन द प्रोसेस हाउ वी डेवलप, द टॉप डाउन अप्रोच होगा, बॉटम अप अप्रोच होगा, तो उससे कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा कि डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके ट्रंकेट करके क्रोमोसोम्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, इवन बी क्रोमोसोम्स को यूज़ करके हम कैसे क्रोमोसोम बना सकते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन सारे चीज़ों को देखा। फाइनली वी हैव सीन द एप्लीकेशंस ऑफ सिंथेटिक क्रोमोसोम्स। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर में क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कि कोई भी बीमारियों को ठीक करने के लिए हो या कोई भी अदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए सिंथेटिक क्रोमोसोम्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग। आई होप द information furnished by me will be helpful for you. If you like this video, please do not forget to share, subscribe, keep on commenting and liking. Thank you once again.